big news coming in ahead of the Kawad Yatra, which begins on Monday, which is the 22nd of July. The police in Muzaffarnagar have asked eateries, including roadside carts along the route of the Yatra, to display names of the owners or the proprietors to avoid any confusion among the Yatris. The move has sparked massive outrage. Remember, Asaduddin Owaisi says Muslim traders are being targeted. Congress has also called it state-sponsored bigotry. That's the kind of reaction that's now coming in from the opposition, given this directive has come in from the police's side. देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। Let me go across to Siddhant joining us with more details. Siddhant, we've heard it from the horse's mouth. It's the police that said that, yes, we have indeed asked all of the shop owners, all of the cart owners to reveal their identity, to talk about who they are, put out their names, right in front of their shops in order to ease the entire process for the Kawad Yatris. But this move has sparked a massive outrage and a lot of political reactions coming in now. Well, absolutely. Look, what the likes of Asaduddin Owaisi are saying, that this is nothing but a food apartheid. The government is asking, the administration is asking people, shopkeepers, to identify themselves. That would perhaps going to be on the religious lines. This is what the opposition parties are saying on this new diktat order that has come from Muzaffarnagar administration. Now, Muzaffarnagar administration has to say that this has been done to avoid any confusion, because due to confusion, there have been multiple incidents that have been reported in the past. So, to avoid any kind of confusion, the shopkeepers have been asked to display their names right in front of their shop, so that the time Yatra passes by, the Yatris, the Kawad Yatris, should not have any confusion while buying food from any of the eateries. So that's the idea behind taking this decision. But now, Asaduddin Owaisi, and in fact many others are saying that this is identifying people on the basis of their religion, and they're calling it food apartheid. We are trying to get word from the higher ups in Lucknow. What do they have to say on this order by the Muzaffarnagar administration? Because Kawad Yatra passes through many districts across Uttar Pradesh, and perhaps it has got a lot of religious beliefs, and there are arrangements that are made ahead of the Yatra. More police deployment, extra precaution is also taken. But since this order has only come for one district, it will be interesting to see how the higher ups in Lucknow are going to sort of react to this particular decision. Okay. But so let's hear it from one of the big players in Uttar Pradesh. This is Samajwadi Party's Fakhrul Hasan Chand joining us on the phone line. Siddhant, I'm coming back to you in just a bit. फकरूल साहब, कैसे देखते हैं ये जो पुलिस का एक ऑर्डर आया है? काफ़ी सारे रिएक्शंस आ रहे हैं, राजनीतिक तौर पे काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं पुलिस से इस डायरेक्टिव को लेके, आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सवाल ये है कि जो काम पुलिस का नहीं है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वो काम पुलिस को करना चाहिए। सभी का काम जो है कार्यपालिका में बटा हुआ है। जो काम नगर निगम का हो सकता है, नगर पालिका का हो सकता है, विकास प्राधिकरण का हो सकता है, उस काम के लिए पुलिस को आखिर आवश्यकता क्या थी? और फिर समाजवादी पार्टी समझती है कि कुछ अधिकारी सरकार की नज़रों में अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरीके के बेतुके तुगलकी फरमान जारी करते हैं। देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जब कोई त्यौहार होता है, इस तरीके के आयोजन होते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, उनके त्योहारों में शामिल होता है। ये जो नकारात्मक सोच है, ये जो नकारात्मक तरह से देखा जाता है, ये बहुत ही निंदनीय है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ट्वीट के माध्यम से भी पूछा है कि जिसका नाम मुन्ना है, जिसका नाम कुछ और है, जिसके नाम से नहीं पता चलता है कि उसका धर्म क्या है, आप उसको कैसे तय करेंगे अगर वो बोर्ड पे अपना नाम लिखवा देगा? तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं जो सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं,
और ये कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, ये तो बिल्कुल सही सवाल है फखरुल साहब की नाम को लेके आप कैसे पहचानेंगे कि कौन है, किस समुदाय का है। पर पुलिस कह रही है अपने बयान में, पुलिस ने जब एक्सप्लेन किया है, बताया कि ये क्यों किया गया है, ये कह रहे हैं कि कई घटनाएं हो जाती हैं जब यात्रा अक्सर ऐसे निकलती है और उन घटनाओं को बचाने के लिए कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए ये ऑर्डर पास किया गया है। नहीं, सवाल ये है कि अब आप देखिए कि मुस्लिम भी कांवड़ यात्रा के बीच में उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था करते हैं, खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी करते हैं। तो ये जो देश में बेवजह के लिए नकारात्मक सोच के साथ आप काम कर रहे हैं, आप जो खाई पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप किसी के नाम से कैसे तय करेंगे? आप क्यों इस बात को तय करना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग रहेंगे या उनकी दुकान अलग रहेगी? क्या है, क्या मुस्लिम जो समुदाय के लोग हैं, क्या वो कांवड़ यात्रा का स्वागत नहीं करते? तो ये बेतुका तुगलकी फरमान है। समाजवादी पार्टी समझती कि ये नकारात्मक सोच का, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने जैसा का आदेश है और इस आदेश को वापस लेना चाहिए। देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार मोहब्बत से साथ रहना चाहता है, साथ रहते आए हैं। इस तरीके के बयानों से, इस तरीके के आदेशों से दूरी बढ़ती है और पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। जो काम उनके विभाग का नहीं है, उस काम को पुलिस को नहीं करना चाहिए। जी, आप कह रहे हैं ये तुगलकी फरमान है। फखरुल साहब, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट पर्सपेक्टिव विद अस। वी हैव कांग्रेस's Imran Masood with us on the phone line as well. Good morning to you, Mr. Masood. You know, what do you make of this order that's been passed by the police? Kawad Yatra starts on the 22nd of July. There are security concerns and the police says keeping that in mind in order to ensure that there is no confusion, कोई confusion ना हो, इसीलिए ऑर्डर पास किया गया है। इस बात का कंफ्यूजन पुलिस दूर कर रही है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ये नफरत की बात क्यों करना चाहते हो आप क्यों आइडेंटिफाई करना चाहते हो? और मेरा सवाल दूसरा है, इन मुद्दों से बड़े मुद्दे इस देश के अंदर हैं। इस देश का नौजवान परेशान है, इस देश का नौजवान रोजगार के लिए धक्के खा रहा है। 600 लोडर की अभी सिर्फ 600 लोडर के लिए टाटा एयरलाइंस ने वैकेंसी निकाली थी। 25,000 लोगों ने वहां पर जाकर आवेदन के लिए खुद पहुंच गए, 25,000 से ज्यादा लोग। तो देश के अंदर जब बेरोजगारी का आलम ये हो कि छोटी से छोटी पोस्ट के लिए लोग इतनी अपनी जान की बाजी लगाकर भी आवेदन करने के लिए वहां पहुंच रहे थे। तो आप कह रहे हैं अगर लॉ एंड ऑर्डर पे बात आ जाए तो वो पुलिस का काम है, पुलिस को फिर काम करना चाहिए, पहले ही ऐसे जो अनाउंसमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं, पास नहीं करने चाहिए। क्या ये मोहब्बत से नहीं हो सकता? क्या ये मोहब्बत से नहीं हो सकता? आप अगर कोई संदेश देना चाहते हो या क्या मोहब्बत से नहीं कर सकते? क्या मुसलमान कावड़ियों की खिदमत के लिए सामने आने का काम नहीं करेंगे? मैं आह्वान करता हूं, मुसलमान हर गांव के अंदर कावड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, कावड़ियों का सम्मान करेंगे, कावड़ियों का स्वागत करेंगे, कावड़ियों का काम करेंगे। मेरे यहाँ से कावड़ गुजरता है, मैं हर साल पूरे कावड़ शिविरों के अंदर खुद खड़ा रहकर के 24-24 घंटे काम करने का काम करता हूँ। इसमें कौन सी बात होगी हम मुसलमान हो गए तो हम कावड़ियों का सम्मान नहीं करेंगे? देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चल सकता। देश के अंदर मोहब्बत की बात होनी चाहिए। जी, ये नफरत की बात है, नफरत का संदेश है, आप कह रहे हैं इमरान मसूद जी। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस हियर ऑन CNN News 18. So that's what's happened here, and we've seen how the opposition in Uttar Pradesh has started responding to this order that's been issued by the police. Siddhan continues to stay on with us. Siddhan, there are some pertinent questions that the opposition has asked even before there is a law and order situation. Why is this kind of an order being passed? More so because it's going to create a divide in the society. Well, absolutely. In fact, this is what opposition is saying, that such blatant orders would create divide in the society, and also it has more to do with identifying people with their religion, the shopkeepers with their religion. As Imran Masood was also pointing out, that whenever Kanwar Yatra passes by, there are a lot of people, groups, communities come on the roads to welcome the Yatra. That's a very old tradition that is followed in Uttar Pradesh every year at the time of this Yatra. In fact, the local communities, Vyapar Mandals, groups, contribute to the success of this Yatra. Now, such orders would create a communal divide, communal disharmony, and perhaps it's more to do with identifying shops with the religion of the shopkeeper.